Good morning, everyone. Today we are going to discuss questions of construction chapter of class 10th. Basically, we are deal with the tangent to a circle. This type of question are collected in exercise 11.2, and if you see NCERT book, then you will see that there are total 7 questions, and out of those 7 questions, few are very important, especially question number 4, in which you have to construct pair of tangent from an external point inclined at an angle of 60 degree. Although we will try to discuss all the questions, at least 4 or 5 questions in this video, and the very important question number 1 and question number 4. So dear student, you have book with you, turn to exercise 11.2, page number 221 from NCERT, and see question number 1. Question number 1, in question number 1 you have to construct pair of tangent from an external point which is 10 centimeter away from the center of a circle whose radius is 6 centimeter. So without wastage of time, let's start. How will you construct this one? First of all, you draw a straight line of length 10 centimeter. So let's see 10 centimeter. Suppose 10 centimeter is here. So this is a line segment of 10 centimeter. You name it as OA. Then from any end point, either from O or from A, you have to construct a circle of radius 6 centimeter. So again, take the ruler and then compass. What you have to do, you have to measure, you have to take an arc of length 6 centimeter. So 6 centimeter is, suppose this one 5, 6. Okay. So now this is the arc of length 6 centimeter. So keep it here. You have to construct a circle. So rotate it like this way. You get a circle of radius 6 centimeter. Now what you have to do? As you know, this point O is 10 centimeter away from the circle. So from here you have to draw pair of tangent. So for that you have to perpendicular bisect the line segment OA. In some of the question you have to bisect the line segment OA. So to bisect a line segment, what you have to do? You have to take an arc whose length is more than half. So here, as you have taken this arc length 6 centimeter, so it is already more than half, because the half of 10 is 5. So this arc is already more than half. So you keep it at each corner. You keep it. So this one is already more than 5, that means 6. So another arc you take from the other end. So you इंटरसेक्ट द प्रीवियस वन. इस आर्क को आप कट कर दो ऊपर भी, और क्या करेंगे, नीचे भी. इस तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अब आप क्या करोगे? स्केल यहाँ पर रख दो. स्केल यहाँ पर रख करके इन दोनों आर्क को आपको ज्वाइंट करना है. मीन्स कि इन दोनों लाइनों को आपको ज्वाइंट करना है. ये और ये रहा. यहाँ पे इसको आर्क मिलाना है. ये, हाँ, ये इस तरह से आर्क मिलाना है. इसको यहाँ पे रखना है.
या इसको तो बिना स्केल की ज़रूरत के भी कर सकते हैं, इसमें स्केल की ज़रूरत ही नहीं है। इसको आप डायरेक्ट कर दो लाइन से, एक दूसरी लाइन ले लेते हैं, उसको कर देते हैं गायब और इसको मिलाते हुए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ओ ए। दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज द सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट you have to do, you have to draw tangent from this point. For that you have to construct one more circle whose radius is equal to half of the 10 centimeter. That means you keep the compass here and then take an arc equal to half of this line OA. तो कंपास की टिप को चाहे आप ए पे रख लो चाहे बी पे रख ओ पे रख लो, दोनों की लेंथ सेम है तो ये रेडियस भी सेम आएगा। अब इससे आपको एक दूसरा सर्किल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। ये रेड कलर से हम कर लेते हैं। ये एक दूसरा सर्किल हो गया जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये जो ब्लू कलर से सर्किल दिख रही है इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको सिर्फ ज्वाइंट कर देना है। किसको ज्वाइंट कर देना है? पॉइंट ओ को, ये जो पॉइंट दिख रहा है ओ, और दोनों सर्किल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये इस तरह से, इस पॉइंट से आपको ज्वाइंट कर लेना है। इसको आप चाहो तो आगे ही बढ़ा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरी तरफ आप एक टेंजेंट खींचोगे ये। तो इस तरह से ये पहला कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे कंस्ट्रक्शन के लिए आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हो, स्टेप वाइज फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। क्या कर देंगे? सबसे पहले 10 सेंटीमीटर लेंथ एक हमने लाइन सेगमेंट ले ली, इसके वन कॉर्नर पर 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये जो कि बहुत इजी है। 6 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसके दूसरे एंड पर ओ और ये जो लाइन सेगमेंट ओ ए है इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। उसके लिए हाफ से ज़्यादा लाइन आर्क लिया हमने। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, उसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेते हैं। देन द रेडियस of the new circle should be half of this length OA। अब OA की लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर ली थी तो उसका हाफ 5 हो जाएगा। वैसे कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो आप इसी तरह से सेंटर ऑफ द सर्किल से ले करके और एक्सटर्नल पॉइंट की लेंथ को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे और उसके मिड पॉइंट को सेंटर और हाफ ऑफ द लेंथ को रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। फिर उस न्यू सर्किल और पुराने वाले सर्किल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उससे उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे जैसे इस फिगर में किया गया है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 5 इम्पोर्टेंट है इसलिए हम 5 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इन विच यू हैव टू ड्रॉ, सॉरी इट्स नॉट 5, इट्स क्वेश्चन नंबर 4 in which you have to draw a pair of tangent inclined at an angle of 60 degree. So for that purpose what you have to do, उसके लिए आपको क्या करना है, एक टेंजेंट खींचना है सर्किल पे जो कि 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन हो। तो इसको बिना किसी मेजरमेंट के हम बनाते हैं। पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी रेडियस का, एक पहले आप सर्किल ड्रॉ कर लो। वैसे जो बुक में लिखा होगा वो सर्किल आप ड्रॉ करिए, जितने रेडियस का दिया हो उतने रेडियस का आप सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। वो बहुत इजी काम है, बहुत टफ नहीं है। इसको हम ऐसे रैंडमली बता रहे हैं। नाउ सपोज वी हैव ए पॉइंट विच इज एक्सटीरियर टू सर्किल and the name of this point is suppose P.
No. What we have to do in this circle, we have to draw a pair of tangent which are inclined at an angle of 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा काम करेगा, जितने डिग्री का एंगल बीच में होना चाहिए टेंजेंट के, उसका सप्लीमेंट्री एंगल हम ले लेते हैं और रेडियस के बीच में उसके सप्लीमेंट्री एंगल को बनाते हैं। तो टेंजेंट के बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो रेडियस के बीच में हमें बनाना पड़ेगा 120 डिग्री का एंगल। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो सेंटर को आप ज्वाइंट कर दो और इस तरह से एक आपको रेडियस मिल जाएगा। ये हो गया रेडियस। अब इस रेडियस से आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आप एक आर्क से स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे 120 का बनाते हैं, ये एक हमने आर्क ले लिया। अब इस कंपास के टिप को आप रखो यहाँ पे और इसको, इस आर्क को कट कर लेते हैं। दिस एंगल इज 60 डिग्री। नाउ अगेन यू हैव टू मार्क the previous arc. This angle, if you join the center of the circle to this arc, you will get angle of 120 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको ज्वाइंट कर लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल को और इस आर्क को। तो ये इस तरह से हमें एक और रेडियस मिल गया। ये दोनों रेडियस आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद करना ये है कि ये दोनों एंड पॉइंट पे, मीन्स कि अगर हम इसको लेट कर लें, ये दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, देन फ्रॉम ए एंड बी वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो उसके लिए आपको फिर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा हर एक कॉर्नर पे। तो उसके लिए पहले आप यहाँ पे रखोगे कंपास और यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। एक हमने आर्क ले लिया इस तरह से, फिर इस आर्क को यहाँ पे रखना है, इसको कट करते हैं। ये हो गया। अब फिर इसको उठाओ, यहाँ रखो, इसको कट करते हैं। ये हो गया 120 डिग्री का एंगल। इसके बाद यहाँ आपको एक आर्क लेना है 90 डिग्री एंगल के लिए। ये आप एक आर्क यहाँ लगा लोगे, 120 वाले कॉर्नर पर रखते हैं और इस आर्क को इस तरह से कट करते हैं। इस तरह से जब आप इस आर्क को और इस ए पॉइंट को ज्वाइंट करोगे, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक इसी तरह से आपको बी पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए फिर से कलर चेंज कर दे, इस बार थोड़ा सा इस कलर को ले लेते हैं। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए आप एक आर्क लोगे, इस तरह से आपने एक आर्क ले लिया, फिर इस पर रखो 60 डिग्री एंगल, ये कट हो गया। उसको उठाओ, यहाँ पे रखो, एक आर्क और ले लेते हैं इस तरह से और ये हो गया 120 डिग्री का एंगल। हालांकि 120 से मतलब नहीं है, बनाना तो हमें 90 का है। तो उसके लिए आप एक आर्क बाय द सेम आर्क यू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल पिछली क्लास में हमने बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दोगे। ब्लैक कलर का ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं कंपास को। किसको ज्वाइन करना, पॉइंट बी एंड उसको गायब कर दें।
90 डिग्री वाली लाइन सपोज करो यहाँ पे आर्क कटा था, ये ऐसे आएगा। बस इन दोनों एंगल को आप प्रोटेक्टर से अगर मेजर करके वेरीफाई करना चाहते हो, वेरीफाई भी आप कर सकते हो। चूँकि ये एंगल आपने 120 लिया है, इसलिए ये 160 डिग्री का होना चाहिए 60 डिग्री। एग्जैक्ट 60 डिग्री का ये आ रहा है, दैट मीन्स आवर कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। सो फॉर टुडे up to this thing it is clear. For any query, for any question, for any suggestion, you can write it comment box. Okay, thanks for watching the video.